Namaskar. A very good morning to all of you. I, Dr. Archana Dubey, Assistant Professor from Government Engineering College, Rajkot, heartily welcome Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Shri Mohan Bhai Kundaria ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha. Shri Ram Bhai Mokaria ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Sir, welcome. Professor Girish Bhai C. Bhimani, Vice Chancellor of Saurashtra University, Rajkot. Welcome you, sir. Dr. Shiv Kumar Tripathi ji, Vice Chancellor of Atmiya University, Rajkot. Welcome you, sir. Shri Hiranyamay Mahanta, CEO, iHub. Welcoming you, sir. Dr. Pradeep Dave, Honorable Mayor, Rajkot. Welcoming you, sir, in the program. Shri Kamlesh Bhai Mirani, BJP President, Rajkot City. Welcoming you, sir, again. Shri Amit Bhai Parekh, Registrar, Saurashtra University, Rajkot. I am welcoming you all on this auspicious occasion, and principals of elite institutes, heads of the various departments, professors, and the galaxy of innovators. It is a matter of great pleasure to witness this interactive session with the teachers, students, innovators, and stakeholders. Thank you, sir. So now, I would like to request Honorable Vice Chancellor, Professor Bhimani, sir, to welcome Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, with a book which is the best friend, philosopher, guide, and a khadi shawl, symbol of. Thank you, sir. For accepting our token of love and remembrance. Dhanyavad, sir. Now, I would like to invite Professor Atul M. Gusai, sir, Computer Science of Saurashtra University, Rajkot, to please come on the stage and welcome Shri Mohan Bhai Kundaria ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha. Sir, please. Thank you so much for accepting the invitation. Dhanyavad, sir. Now, I would like to request Dr. Jitendra Radodia, sir, Assistant Professor, Journalism and Mass Communication, Saurashtra University, Rajkot, to come and welcome Shri Ram Bhai Mokaria, sir, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Thank you so much, sir, for coming. In the spree, I would like to invite now Dr. Kishore Ji Maradia, sir, Principal Government Engineering College, Rajkot, to please come on the stage and welcome Professor Girish Bhai C. Bhimani, sir, Vice Chancellor of Saurashtra University, Rajkot. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to invite Shri Sharad Kondia, sir, Government Polytechnic, Rajkot, to come on the stage and welcome Dr. Shiv Kumar Tripathi, sir, Vice Chancellor of Atmiya University, Rajkot. Welcome you, sir.
I request Dr. K.D. Ladva sir, M.N. Virane Science College, Rajkot, to please come on the stage and welcome Shri Hiranyamay Mahanta sir, CEO of iHub. Thank you sir for coming. Now, I request Dr. Ranjan Khoot, SSIP Coordinator, Saurashtra University, Rajkot, to come and please welcome Dr. Pradeep Tav, Honorable Mayor, Rajkot. Thank you, Madam. Thank you, sir, for coming. I request Dr. Ashish Kothari sir, Deputy Registrar, Atmi University, Rajkot, to please come and welcome Shri Kamlesh Bhai Mirani, BJP President, Rajkot City. Thank you sir for coming. Now I would like to invite Parth Sejpal, CEO Startup and Entrepreneurship Council, Saurashtra University, Rajkot, to please come and welcome Shri Amit Bhai Parekh, Registrar, Saurashtra University, Rajkot. Thank you, sir. Thank you very much, all the dignitaries on the dais, for accepting the invitation and gracing the occasion. We are really grateful to all of you. Now, I earnestly request Professor Girish Bhimani sir, who is known for his quick decisions, exemplary ideas, commitments in academics and administrations, the leader, the mentor, and the lighthouse of Saurashtra University. Now, I would like to request Hiranyamay Mahanta sir, CEO iHub, to share his valuable ideas regarding the startup ecosystem in Gujarat. Welcome, sir. Respected Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship, जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और चीफ स्पीकर भी हैं, राम भाई मोकरिया जी, मोहन भाई, प्रदीप जी, कमलेश जी, प्रोफेसर गिरीश, प्रोफेसर त्रिपाठी, and the entire team of Saurashtra University, Atmi University, Innovation Ecosystem of Saurashtra. मुझे बताया गया कि आज सिर्फ राजकोट की नहीं परंतु 70 से ज़्यादा कॉलेजेस की जो इनोवेशन क्लब हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं. तो एक बड़ा अनोखा प्रोग्राम है कि आज आप सब लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं. उसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आप सबको स्वागत करना चाहूँगा. मैं 2 मिनट सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर राजीव जी उस प्रक्रिया को कैसे त्वरान्वित कर रहे हैं. अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नेतृत्व में राजीव जी के डिपार्टमेंट ने 5G लॉन्च किया. आप सब जानते हैं, राइट. दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम इन नेक्स्ट डेज टू कम. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कैसे इसमें भागीदारी बन सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी को लेकर. तो मैंने आज छोटा सा एक टर्म उसी 5G की कॉन्टेक्स्ट में ही सोचा कि बताऊं आपको. हम भी 5G जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में. 5G हैं. पहला G है गवर्नमेंट. सो आप सबको जान के खुशी होगी कि गुजरात गवर्नमेंट पहला स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें 3 मंत्रालय के अंदर में स्टार्टअप्स पॉलिसी है. ये पहला स्टेट है पूरे कंट्री में. एजुकेशन विभाग के पास, जैसे साहब ने कहा, स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है. द फर्स्ट G ऑफ और 5G इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप इज गवर्नमेंट ड्राइविंग द गेम. द सेकेंड G इन आवर इकोसिस्टम इज जियोग्राफिक इंक्लूजन. अभी मुझे फिर से बताते हुए खुशी होती है
गुजरात पहला राज्य है जब स्टार्टअप इंडिया के रैंकिंग में हम तीसरी बार नंबर 1 आए और जो डाटा आंकड़े आए, गुजरात पहला राज्य है जिसका हर एक जिला में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं जो DPIIT की मान्यता प्राप्त हैं। तो हम जियोग्राफिकल इंक्लूजन भी हमारे इकोसिस्टम में लेके आते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद गांधीनगर में ये स्टार्टअप्स हैं, ये हर तालुका लेवल पे, हर एक जिला लेवल पे हो रहा है। तो पहला जी की हमने बात किया गवर्नमेंट, सेकेंड जी की बात किया जियोग्राफी, तीसरी जी है जेंडर। आप सबको खास करके जो यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप सबको बताते हुए खुशी होती है, हमारे पास कोई अगर यंग इनोवेटर या स्टार्टअप आता है और शॉर्टलिस्ट होता है तो उसको 30 लाख रुपए का सीड ग्रांट देते हैं। आप उससे अपने आइडिया का प्रोडक्ट या मार्केट तक ले सकते हैं। लेकिन उस टीम में अगर कोई जी मतलब गर्ल हो, अगर कोई बहन वहाँ पे को फाउंडर या फाउंडर हो तो हम उसको 40 लाख रुपए देते हैं। सो ये पहला इनिशिएटिव है जहाँ हम जेंडर इंक्लूसिविटी लेके आते हैं हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एंड सिर्फ ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं, जो हमारा हैकेथॉन होता है, जो इनोवेशन चैलेंज होता है, उसमें भी हम लोग महिला इनोवेटर, यंग इनोवेटर, उनके लिए भी हम एक स्पेशल थ्रस्ट रखते हैं। 4G है ग्रास रूट इनोवेशंस। जो लोग अपने कोठा सूझबूझ से, जो अपने समझ से, जो अपने इंजेन्यूटी से इनोवेशन करते हैं, वो भी गुजरात सरकार का स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डाटा के हिसाब से करीब 1 लाख ग्रास रूट इनोवेशंस अभी तक डॉक्यूमेंटेड हुए हैं और उसका हाईएस्ट शेयर मोर देन 10,000 सौराष्ट्र की ज़मीन से आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सौराष्ट्र हैज बीन द हब ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन एंड स्टार्टअप मूवमेंट। एंड द फाइनल वन अमंग द 5th G इज जनरेशन नेक्स्ट। जब हमने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी की दूसरी रूप इस बार 2022 से 2027 तक बनाया, तो 3 चीज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 3 चीज़ उन्होंने ऐड करी। उन्होंने कहा कि हमारा जो इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो जनरेशन नेक्स्ट के लिए कैटर करना चाहिए। जनरेशन नेक्स्ट कौन है? आप सब है। पीपल हु आर इन द फेसबुक एरा एंड लिंक्डइन एरा और मे बी इन द इंस्टाग्राम एरा, दे आर गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम। सो इसलिए जो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी का जो दूसरा रूप बना, उसमें सिंगल क्राइटेरिया है, गुजरात की ज़मीन पे कोई भी युवा जो 35 साल से नीचे है, चाहे किसी कॉलेज में हो, कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हो या इवन कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया हो, उसको आइडिया लेवल पे 2.5 लाख रुपया और प्रोडक्ट की लेवल पे 10 लाख रुपए की ग्रांट इस पॉलिसी के तहत आप सबको मिल सकता है। तो ये जो 5G का स्पेक्ट्रम है हमारा, जो इकोसिस्टम का, जेंडर का, जियोग्राफी का, नेक्स्ट जनरेशन का, गुजरात सरकार का और ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट का, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years to take our ecosystem forward. And today we are here to listen and get guidance from none other than the Honorable Minister Rajiv Chandrasekhar ji. Thank you so much. Thank you all of you. Now, moving towards further, we have arrived to the most awaited part of today's program, that is interactive session with our Honorable Chief Guest, Shri Rajiv Chandrasekhar ji. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has a vision and mission to help every India to grow. He mentioned Darji Online, a true testament of digital India, in his recent Mann Ki Baat in August 2022. Let's interact and exchange the ideas to make India as Vishwaguru. With kind permission of Sir Rajiv Chandrasekhar ji, I would like to invite you on the dais to share your insights with the faculties and everything. Thank you, sir. Welcome, sir. मेरे fellow co-traveler and colleague in Parliament, Mohan Bhai Kundare ji, Ram Bhai Mukhare ji, Dr. Pradeep Dav, Shri Hiranmay Mahanta, Professor Girish Bhai Bhimani, Dr. Shiv Kumar Tripathi, Mr. Amit Bhai Parekh, faculty, students, आप सबको नमस्कार। महानवमी का आपको बेस्ट विशेस। और हम कर्नाटक में आयुध पूजा मनाते हैं, तो आयुध पूजा का भी आपको बेस्ट विशेस। मेरा आज एक थोड़ा प्रेजेंटेशन है। आई होप आई कैन कीप यू ग्रिप्ड एंड अटेंटिव टू दैट प्रेजेंटेशन। मेरा मानना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है
नॉट बिकॉज मैं दे रहा हूँ, बट उसमें जो मैं कह रहा हूँ आप ही के रेलेवेंस के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शनल क्यू है उसमें। आप में से स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में कितने लोग यहाँ पर सोचते हैं? हाथ खड़ा कीजिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो फ्यूचर हम बना रहे हैं उसमें आप सबसे बड़े इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, यानी कि ये फ्यूचर होना चाहिए आपके बारे में? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज़। कम ही लोग हैं, थोड़ा कम है, ठीक है। एनीवे, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू मी। मैं आज आपके सामने दो आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा। आप ये वुड यू लाइक मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी वाले ज़रा हाथ खड़ा कीजिए और इंग्लिश वाले ज़रा खड़ा कीजिए। हिंदी समझाने में हिंदी बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, परफेक्ट। नहीं ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा, मैं थोड़ा मिक्सअप करूँगा थोड़ा। तो दो इश्यूज़ हैं यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, ये न्यू इंडिया क्या चीज़ है। यंग इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, यू आर यंग इंडिया। जैसे आपने एक हाथ खड़ा करके एक डिसाइसिवली एक मैसेज भी भेज दिया कि यंग इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये न्यू इंडिया क्या है और ये टेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपके सामने थोड़े डिटेल्स दूंगा। Am I presenting this? Okay. A little bit मेरे बारे में थोड़ा बैकग्राउंड, ये इसीलिए नहीं कि मैं अपने आप के बारे में आपके सामने कुछ ज़्यादा बात करूँगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं भी 20-30 साल पहले आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। मेरा भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओरिजिन्स नहीं थे। मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरा जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। और मेरे जो लाइफ की जर्नी है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल जर्नी। इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी यही है कि मेरे 12 साल के स्कूलिंग मैंने 10 स्कूल में किए हैं। आप सबको एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आप जब सोचते हैं मेरे चाइल्डहुड दोस्त कौन हैं, मेरे क्लासमेट्स कौन थे, आपके पास 10-20 नाम होंगे। मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे से कोई पूछता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स कौन थे, मेरे पास नाम कोई नहीं है, क्योंकि मैं हर स्कूल में 1 साल 1.5 साल रहता था। एंड दैट वाज माय जर्नी एज अ सन ऑफ अ एयरफोर्स ऑफिसर। मैंने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर की। और मेरे 3 फेजेस रहे हैं करियर के। पहले फेज़ तो मैं इंटेल में एक डिज़ाइन इंजीनियर और सीपीयू आर्किटेक्ट था, और कंप्यूटर साइंस किया मैंने। मैं बहुत एक प्रोलिफिक कोडर था। पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया, उसके बाद इंटेल ने हायर किया। और इंटेल में मुझे हायर किया गया बाय अ लेजेंडरी मैन कॉल्ड विनोद धाम, जो उन दिनों में और आज भी एक बहुत बड़े इंडियन नाम है माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और इंटेल में मैंने 2 लैंडमार्क चिप्स पे काम किए, एक 80486 और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन वाले माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था पेंटियम। और पेंटियम का जो आर्किटेक्चर था उसने काफ़ी सारे डाउन स्ट्रीम डिज़ाइन आर्किटेक्चर्स क्रिएट किए। इन दी अर्ली 90s मैं वहाँ से एक लीव ऑफ एब्सेंस लेकर यहाँ पर एक सेलुलर नेटवर्क शुरू करने की कोशिश की। और फिर बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दैट मैं यहाँ पर 10-12 साल सेलुलर में था। भारत के फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क मैंने शुरू किया था। और अक्टूबर 2 जो हाल ही में यहाँ पे महंता साहब कह रहे थे कि अक्टूबर 1 को 5G का लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
और अक्टूबर 2 मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिन है, क्योंकि 27 साल पहले, 27 years ago, बिफोर मोस्ट ऑफ यू वर इवन बॉर्न, 27 साल पहले अक्टूबर 2 1995 में मैंने भारत के फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क को शुरू किया था मुंबई में। तो ये मेरा जर्नी रहा है, और कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी गिफ्ट्स और टैलेंट के कारण नहीं, बस हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। 2006 में मैंने सोचा पब्लिक लाइफ में ज्वाइन करूं, सो 2006 से आज तक 16 साल मैं पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स में हूं। और जुलाई 7 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एक अवसर दिया स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड। ये एक स्लाइड है, इसमें मैं इंग्लिश में बोलूँगा और फिर देन आई मे बी ट्रांसलेट इन हिंदी। वाई आर वी टुडे एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत के इतिहास में हम 75 साल के इंडिपेंडेंस मना रहे हैं आज इस साल। ये ऐसा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी भारत ने कभी नहीं पहले देखा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सब जो बैठे हैं डायस पे, हमारा तो 50% 60% यूजफुल लाइफ तो हो गया है। आपके सामने पूरा का पूरा यूजफुल लाइफ इज अहेड ऑफ यू, एंड यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट जनरेशन, क्योंकि जब भारत का एक टाइम आ गया है विश्व में, आप वर्कफोर्स में, आप अडल्टहुड में और इकोनॉमिक लाइफ में आप पधार रहे हैं। तो आपके लिए एक तरह से सब कुछ तैयार करके सब कुछ रख दिया गया है, और आपको अभी इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना है। सो वी आर टुडे, ये मान के चलिए, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड इन मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों? वाई? और ये न्यू इंडिया क्या है? ये मैं आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूँ कि आपके पिताजी, आपके ग्रैंडफादर, उनके जनरेशन में, हमारे जनरेशन में इंडिया के बारे में काफ़ी सारे नैरेटिव्स होते थे। मैं 3 नैरेटिव्स आपके साथ शेयर करूँगा ऑफ देन एंड नाउ। पहला नैरेटिव ये होता था, और ये सालों से, मैं जब स्टूडेंट था, मैं जो प्रोफेशनल था, मैं जब इंडिया विजिट करता था, बाहर था, और आप देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, पहला नैरेटिव ये था, इंडिया एक महान देश है, बड़ा देश है, काफ़ी सारे पॉपुलेशन हैं, बड़े स्मार्ट यूथ हैं, लेकिन उसका गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल है। ये 60 साल तक ये नैरेटिव था, ये गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इज डिसफंक्शनल। इसके प्रूफ में 1985 में तब का एक प्रधानमंत्री ने फेमसली एक कोट दिया था कि हर 100 रुपए जो निकलते हैं दिल्ली से, 15 रुपए पहुंचते हैं इंडियन सिटीजन और या बेनिफिशियरीज के हित के लिए। और ये नैरेटिव परमानेंट था। ये नैरेटिव इतना परमानेंट हो गया था कि हमारे जो नॉर्थ में एक नेबर है चाइना, जो अथॉरिटेरियनिज्म का एक लिविंग नमूना है, मार्क्सिज्म का एक आइडियोलॉजिकल बैस्टियन है, उन्होंने तो सालों साल स्टडीज़ और पेपर्स उतारे कि एशिया में अगर लोगों की भलाई करना है, डेमोक्रेसी विल नेवर वर्क। और उस एग्जाम्पल को लेते थे और पॉइंट करते थे इंडिया की ओर। देखिए, बड़ा देश है, डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट देखिए, वहाँ पे रैम्पेंट करप्शन है, डेवलपमेंट नहीं है, लोग हमेशा 60 सालों से, दशकों से गरीब रहते हैं, और कम्युनिज्म देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक नैरेटिव था इन दी फॉर ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स। और आज देखिए 2022 में जो 100 रुपए निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपए पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में,
no delay, no leakage, no corruption, no intermediation. तो 180 डिग्री का जो पुराना नैरेटिव था, उस नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने टोटली यस टर्न्ड इट अराउंड. ठीक है, दूसरा नैरेटिव, सालों से इंडिया विल नेवर ग्रो फास्ट. इंडिया का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी क्रम्बलिंग, क्योंकि सरकार के पास पैसा कभी होगा नहीं. हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मॉडर्न प्लेन्स नहीं होंगे. चाइना आ गए तो आ गए, लैंड ले लिया तो ले लिया, क्योंकि हमारे फोर्सेस के पास ना तो बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए पैसा है, ना फाइटर जेट के लिए पैसा है, ना मॉडर्न इक्विपमेंट के लिए पैसा. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन, सिटीज़, विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे टैक्स जीडीपी रेशियोज इतने लो थे, गवर्नमेंट के पास पैसा कभी होता नहीं था. तो जस्ट हमारा ग्रोथ ये 4-4.5% दशकों से वही था हमारा नैरेटिव. इंडिया ग्रेट पोटेंशियल बट लो ग्रोथ. ये ग्रेट पोटेंशियल के बारे में मैंने एज अ यंगस्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आई हर्ड इट रिपीटेडली. 2022 में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हमारे टैक्स रेवेन्यूज हैव एक्सीडेड टारगेट्स बाय 25%. ये कभी नहीं हुआ है देश की हिस्ट्री में. हमारा ग्रोथ रेट है दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा आगे वाला ग्रोथ रेट, और हम पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे सेना को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं. चाइना अगर घूर के देखेगा भी, हम वापस बताते हैं उनको कि ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया. थर्ड नैरेटिव, सालों से, दशकों से इंडिया में बहुत सारे पोटेंशियल गिफ्टेड यूथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं देश में, वो उसका एक मोनोपोली सा हो गया था. वही 3-4 कंपनी, वही जो जिनके ग्रैंडफादर, फादर, फेमस लास्ट नेम वाले ग्रैंडफादर और फादर होते थे, उनके पास ही अपॉर्चुनिटी जाता था, उनके पास ही पैसा और क्रेडिट मिलता था. और 2010 में मैंने पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसने दिखाया कि 97%, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होंगे कोई, 97% ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्थ हैड बीन बोरोड बाय 9 फैमिलीज. तो अगर मैं युवा होता, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास एनर्जी है, मुझे पैसा मिलने की प्रॉब्लम होता. ये था पुराना भारत. आज नया भारत में क्या है? 102 यूनिकॉर्न बने हैं, 75,000 स्टार्टअप्स बने हैं. ना किसी का कोई फेमस लास्ट नेम, किसी का कोई कनेक्टेड फादर, ग्रैंडफादर नहीं. सभी अपने कॉम्पिटेंसी पे, अपने एनर्जी में, अपने डिटर्मिनेशन से $1 बिलियन बिजनेसेस खड़े करे हैं. सो देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटल. ये है न्यू इंडिया. तो टाइटल न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया का पहला इंट्रोडक्शन, कि वो जो पुराने सालों से, दशकों से जो आने वाले नैरेटिव्स थे भारत के बारे में, उसको हमने पूरा बदलकर एक नया इंडिया का नैरेटिव बनाया है, एन इंडिया ऑन द मूव. आप में से स्टूडेंट लोगों को मैं ये एग्जांपल जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली द यंग लेडीज इन द ऑडियंस. हमारे सरकार ने पिछले साल एक प्रोग्राम चलाया कि 1000 students, 9th and 10th standard students and 11th and 12th standard students from government schools, we will teach them artificial intelligence programming. और एक कंपटीशन करेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कौन करेगा, और उनको अवार्ड देंगे. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई जो कोडिंग वगैरह करते हैं? You know that artificial intelligence programming is very, very difficult. It is not easy.
ये बड़ा हाई एंड कोडिंग है। आपको जानकर खुश तो होना ही आपको को एक तरह से सरप्राइज भी होगा कि the youngster who won the first prize in this artificial intelligence program is a 9th standard girl from a government school in Lalitpur, Uttar Pradesh, called Nandini Kushwaha. और इस नंदिनी के बारे में मैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाके इवेंजलाइज करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ, क्योंकि इसका स्टोरी सुनने लायक है। इनका स्टोरी, किसान की बेटी है, कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम करती है जो कैमरा से लिए हुए पिक्चर ऑफ अ प्लांट एज एन इनपुट, हर प्रोग्राम सेज व्हाट द प्लांट लैक्स। पानी की कमी है, फॉस्फेट की कमी है, पोटेशियम की कमी है, यूरिया की कमी है, क्या कमी है, थ्रू वन इमेज, एंड शी डिड इट ऑल ऑन हर ओन। मैंने जब पूछा ये आपने इसको, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? उन्होंने कहा कि मेरे फादर किसान हैं, मैं देखती थी कि कैसे वो अपने फार्म में ही यूज्ड टू वरी कि ये प्लांट का प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा गेस वर्क करते थे, और मैंने ये एआई प्रोग्राम किया। तो ये है फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर कि 9th स्टैंडर्ड गर्ल फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज़ डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग। और आप सब तो कॉलेज में हैं, आप डिग्री पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि ये है नया भारत, दिस इज़ द न्यू इंडिया एंड दिस इज़ द न्यू यंग इंडियन। इन समरी, मैं अभी और टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इंडिया इज़ लीडिंग डिजिटल, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिजिटल इज़ लीडिंग इंडिया, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से सब नहीं तो कोई इस डिजिटल इंडिया के लीडरशिप देंगे, करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बड़ा स्पष्ट है, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है और $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। उसमें स्किलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिजिटल स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया एक ग्लोबल स्किल्स हब बने। नेक्स्ट, एक और बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, रेंजिंग फ्रॉम एआई, इंडस्ट्री 4.0, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, साइबर सिक्योरिटी। इन द एंड आई वांट टू लीव दिस थॉट विथ यू, आपके लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पिछले 8 साल में हमने बहुत एक रास्ता ट्रैवल किया है और एक नया भारत का एक कॉन्टूर्स बनाया है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब है स्ट्रॉन्ग कंट्री, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब है आपके लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। वी आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया विथ रीइमेजिन्ड एम्बिशंस। रीइमेजिन्ड एम्बिशंस, आपके रीइमेजिन्ड एम्बिशंस। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर, सो द इनोवेटर्स कैन शेयर देयर मन की बात इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री चंद्रशेखर जी and seek his guidance and blessings. The session is open. If any question coming from the audience, the budding researchers and scientists. Yes, please. Hello. Hi, sir. On your right, yeah. So I had a question regarding, so we are already into electronics manufacturing. India is very much into electronics manufacturing, as you just mentioned. Now comes the problem of obviously silicon. So as we know, most of the silicon production is done in Taiwan, and the only way to do it anywhere else is by investment of like humongous capital, which wherein government and very big private sector has to come in together to do that. And that shortage, as like since COVID, is affecting a lot of electronics manufacturing businesses. So sir, can you just share what are the plans of government regarding the same? So I think there are two things on electronics that I want to tell you. One is
हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक स्ट्रैटेजी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को कैसे ब्रॉडन किया जाए। मोबाइल फ़ोन में हमारा वी आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन हम अन्य कैटेगरीज में भी हम ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल सर्वर्स, बैठ जाइए नो प्रॉब्लम, सर्वर्स, टैबलेट्स, hearables, wearables, components and the downstream, तो broadening and deepening। अच्छा, डीपनिंग में आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द लॉजिक और मेमोरी, दैट इज सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर। और हम एक क्वांटम जंप लीप फ्रॉग कर रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि धोलेरा में भारत का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। एंड उस सेमीकंडक्टर प्लांट में लेगेसी नोड्स और एडवांस नोड्स दोनों होंगे। तो हमारे ऑटोमोटिव सेगमेंट, हमारे कंप्यूट सेगमेंट और मोबिलिटी सेगमेंट को काफ़ी सारा वहाँ से सेमीकंडक्टर सप्लाई होगा, एक तो वो। लेकिन इसका सेकेंड एडवांटेज ये सुन लीजिए आप, धोलेरा इज पोजिशन टू बिकम अ ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन हब, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन हब। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक है मैन्युफैक्चरिंग, द सेकेंड इज सिस्टम डिज़ाइन इनोवेशन। तो ये भी एक चाइना का मोनोपोली होता था कि वहाँ पर सभी हियरेबल, वेरेबल सबका डिज़ाइन वहाँ पर होता था। लेकिन काफ़ी सारे अभी कंपनी शुरू हो गए हैं जो इंडिया में डिज़ाइन करते हैं सिस्टम्स, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स, स्पेशली नाउ विथ AI एंड ऑल दीज थिंग्स कमिंग। तो वो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो अनदर अपॉर्चुनिटी। तीनों एरियाज़ में हमने काफ़ी सारे मेहनत हमने किया है, स्कीम्स भी हैं। और पूरे अक्टूबर में मैं एक रोड शो कर रहा हूँ जहाँ मैं हर स्टेट में जाऊँगा कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए भारत सरकार देने के लिए तैयार है अप टू 100 करोड़ एज ग्रांट फॉर एवरी डिवाइस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हो या ENC के इंजीनियर हो और आपको सेमीकंडक्टर में रुचि है, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। क्योंकि सरकार का भी पैसा होगा, गुजरात सरकार भी सपोर्ट करेंगे, और आपका एक पूरा बड़ा नेक्स्ट 2 years में एक इकोसिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी खड़ा हो जाएगा इन धोलेरा। Namaskar sir, my name is Yash Gogani and I am student of MBA department, Saugarsh Industry. So my question is that today we are talking about 5G and most of the buzzing words like, as you said, metaverse and cryptocurrencies. So how do you see the future of 5G in context of metaverse and cryptocurrencies? And how do you see the impact on common man? These are not, these are very discrete technology trends. 5G और metaverse और 5G और blockchain या crypto में यही connection है कि 5G allows you to connect to the internet faster, and therefore it is a faster pipeline to crypto, faster pipeline to metaverse. But 5G का मैं आपके साथ share करूँ यहाँ पे, 5G has a very defining change to the internet. और मैं 5G को I use a phrase, it is the first step to the future of the internet, future of the wireless internet. क्योंकि 5G पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तो है ही, जो हमारा आप फ़ोन पे बात करते हैं या व्हाट्सएप भेजते हैं, लेकिन 5G का पावर इज़ रियली दैट इट इज़ अ मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी. Sensors can communicate to sensors, sensors can communicate to computers, sensors can communicate to phones. So it is a person to machine technology as well as machine to machine technology, unlike anything you had seen in the past. That in itself will create huge opportunities of innovation around the internet, around the wireless internet. तो and इसका advantage ये है कि भारत का position जो है, अमेरिका का, साउथ कोरिया का, वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल, सेम स्टार्टिंग पॉइंट. तो there is a lot of innovation around 5G that Indian startups can do that can be used for the world. Thank you, sir. Hello. Sir, my name is Rakesh Rajikuru. I am faculty at Government Polytechnic Rajkot.
I would like to narrate that being in a Rajkot. Rajkot is a great amount of and category of foundries. Say we were discussing about the semiconductors. See, here we are having all metal foundries, ceramic foundries are in Morbi. So I think that it would be better if we propose the silicon foundry, which are very less at global level, and even in India, it is I think hardly difficult to found the foundry of silicon level. So, and second thing is that in the world there are no automobile which is not having the component manufactured in the Rajkot. So as a hub, automobile hub, Rajkot can be developed. So there are two propositions. One is sample semiconductor, second is the automobile for Rajkot. So I mean, I have absolutely no debate on that, excepting मैं respectfully point out करूँगा कि फाउंड्री जो मेटल फाउंड्रीज हैं और सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज में बहुत आसमान इसका फ़र्क है. The semiconductor foundry is the highest technology manufacturing ever. It needs a totally different environment. It needs land, water, gases, and it's a very, very complex process, unlike what you are referring to is in the metal foundries. और वैसे भी आ गया है ना धोलेरा में, आपको वो तो गुजरात में आ ही गया है फाउंड्री, पहला फाउंड्री तो आ ही गया, देश का पहला फाउंड्री इज इन धोलेरा. अच्छा, दूसरा तीसरा फाउंड्री अब जब आता है राजकोट कैन प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन अपॉर्चुनिटी. उसमें आई हैव नो व्यूज ऑन इट एंड आई एम श्योर दैट इन द फ्यूचर राजकोट विल प्ले अ रोल इन दैट एज वेल. ऑन द इश्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, मेरा 5 नया पैसा का रिस्पॉन्स इज द फॉलोइंग कि हमें गाड़ी बनाना ही कोई ऑब्जेक्टिव है ऐसा मानकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में जो कंपोनेंट्स हैं they are also precision engineering, they are highly tooled and they requires a lot of technology and skills and talent. And as long as Rajkot becomes the component supplier to the automotive supply chain of not just India but also the world, that itself is a huge opportunity coming in the coming years. क्योंकि आज भी चाइना में काफ़ी सारे components बना रहे हैं for the other automobile supply chain, और वहाँ से भी diversification की ज़रूरत है और वो देख रहे हैं कि कहाँ पे सेटअप किया करें. तो जहाँ पर हमारा कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस करके एक्सपैंड करें, ना कि हम वी लुक एट अदर एरियाज टू फास्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मुझे मालूम है बहुत लोगों में और सवाल पूछने की उत्तेजना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है, सबसे सही हमें मिला है अवसर कि हम सही जगह मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध, यहाँ से एक बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़. Thank you so much for allowing. Namaskar sir, my name is Dr. Nilay Pandya and I am from HNHB Kotak Institute of Science, that's a government science college in Rajkot. My question is regarding education. As I just pointed out, very humbly I'm just saying that the whole, the presentation was perfectly alright. I felt that education was missing in that presentation. My question is that education is the base of everything, of whatever we want to go ahead with. So presently India is having 3.45 to 3.5% of GDP is being given to the education sector. If we talk about US, it is 4.96, and if we talk about all the developed nations, it is at somewhere hovering around 5.59% of developed nations putting in their GDP for education. When can we see India putting in 6% of its GDP for education and putting some real strength behind all the educators of India? So, first of all, the reason I did not touch education is I am not the education minister. मेरा पोर्टफोलियो बड़ा स्पष्ट है, स्किल डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स IT है, सो आई डोंट स्पीक अबाउट समथिंग दैट इज समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव अ स्ट्रिक्ट रूल अबाउट दैट. मैं किसी और के काम के बारे में कमेंट करता नहीं हूँ. बट आप ये द मेजर ऑफ एजुकेशन एफिकेसी एज एन एलोकेशन टू GDP, आई थिंक रेस्पेक्टफुली इज फ्लॉड. We today, our issues about challenges that the world faces and where our education system is responding and will continue to respond, ki how do we create
highly talented, globally capable workforce and students for the workforce, not just for our requirement but also for the world. इसमें सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम स्किलिंग और नॉलेज को दोनों करिकुलर इंटीग्रेशन करें. That is what the National Education Policy does. That knowledge is and a degree is not enough for this modern post-COVID world. तो मैंने वो तो मेंशन किया ही है, तो आप मेरे प्रेजेंटेशन को थोड़ा A+ ग्रेडिंग दे दीजिए प्लीज़. कि मैंने ये कहा कि I go to every college and I visited now over 50 colleges in my last 1 year, and I request all the youngsters that you have an opportunity to get a degree, but please 5,000 से ज़्यादा स्किलिंग के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं. आप 1-2 स्किल्स भी ले लीजिए. एंड 2026 से, क्योंकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी was notified, from 2026 you will see the impact of this curricular integration, because every school graduate who only had an option of either dropping out or doing higher education now will have an option of higher education, the skilling route and the sports route. And most importantly, you are an academic, so you will enjoy this, and for students also, that down the road if I don't pursue higher education and I do skilling, 3 साल के बाद I can come back into the higher education stream through the pooling of credit, academic banking of credit. मैंने 2 साल स्किलिंग किया है, उस क्रेडिट्स को मैं इंजीनियरिंग के डिग्री की और आई कैन पूल दैट क्रेडिट. आज के दिन 12वीं क्लास में बच्चा तय करता है उसके फ्यूचर लाइफ. He or she decides by either dropping out or continuing on one stream of higher education what the rest of the life is going to be on. With the national education policy, the student has multiple options post 12 and continue in his or her life to keep changing career directions. ये अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं because it is still going on, it is still in the school system, but it will dramatically transform the students and the youth of India in terms of their positioning for these opportunities that I talked about in this presentation. और मैं 4.6, देखिए अमेरिका में everything is more expensive. If you do this 4.6 as a percentage of GDP and compare it to our percentage of GDP, it is really not apple to apple, with great respect. और उस नंबर के गेम पे अपने को जाना ही नहीं चाहिए. Our ability as India is how we can make 1 rupee go 100 rupee distance. तो ये 1 रुपया से हमारे स्टूडेंट के लाइफ में एक्सेलेंट एजुकेशन कैसे प्रदान करें, ना कि हम 100 रुपये के लिए ढूंढते फिरें. So that is my response to that, even though education is not my forte, but I am very passionate about that area. And I personally think कि national education policy का result हम 25-26 से देखेंगे. एक पूरा नया generation of school students will come out who will enter into the job world very differently equipped. Thank you, sir. Thank you so much for the nice. बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल हैं. अब जब सर हमारे अपने ही हैं, अहमदाबाद के हैं, जन्मस्थली, तो आते रहेंगे और हमें अवसर मिलता रहेगा कि हम और सवालों के जवाब ले सके. सर ये हम लोग थोड़ा सा आपसे ले रहे हैं फेवर, and we hope. So indeed, the great session. It is very insightful and productive. Our innovators are truly blessed to have you, sir, with your valuable suggestions and recommendations. I'm sure it will boost the innovation in Saurashtra, and many more innovators will come to contribute it. Thank you, and thank you once again, sir. Now I would like to request Amit Bhai Parekh, sir, Registrar, Saurashtra University, to come and express the feeling of gratitude regarding the program. Thank you, sir. Of you. I am grateful to our chief guest, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT, for sparing his valuable time in encouraging and motivating the entrepreneurs to build a sustainable startup and contribute towards the growth of economy. I convey my heartfelt thanks to you, sir. My heartfelt thanks to dignitaries on the dais, Sri Mohan Bhai Kundaria, Member of Parliament Lok Sabha, Sri Ram Bhai Mokaria, Member of Parliament Rajya Sabha,
Sri Girish Bhai Bhimani, Vice Chancellor, Saurashtra University, Dr. Shiv Kumar Tripathi, Vice Chancellor, Atme University, Sri Mohanta Sir, Chief Executive Officer, IHUB. Then those present earlier, Dr. Pradeep Dao, Mayor Rajkot, Sri Kamlesh Mirani, President BJP Rajkot. I owe special thanks to our Honorable Vice Chancellor, Saurashtra University, Dr. Girish Bhai Bhimani Sir, for his continuous support. I heartfully thankful for Vice Chancellor, Atme University, Dr. Shiv Tripathi Sir, for his generous and continuous support as a venue partner. I also thank the team IHUB and all the liaison officers for their support. I extend thanks to all the media team to cover this event. I thank all the principals, head of the department and faculty members for taking the benefit of this event. Once again, I thank you all of you. I would like to request our chief guest, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Shri Mohan Bhai Kundaria ji and Shri Ram Bhai Mokaria ji. Please felicitate our student achievers of the Startup program. First, I would like to call on stage Dr. Priya Patel of Health Sector, who has done Women's Magic Corner Startup. Forum H. Waghela of Architect Sector, URI Identifier. Thank you, sir. Ms. Shweta M.R.T. Keshorna Hair Oil, the startup in the healthcare sector. Thank you, sir. Ms. Mintu Nimawat, Bio Packaging, Waste Management. Ms. Faizan Noida, Water Management, Grey Water Recycling Filter. Please keep on coming fast. Shri Hitendra K, Lebeco Wares, Energy Sector. Priyanka Dobaria, Automation in Agriculture in the Agri-Tech sector. Saparia Kishan Chaganbhai in Automobile sector. Startup is Bicycle of Hybrid Nature. Jaideep Didania, Darwin Lab, Artificial Intelligence sector. Toyam Sharma, Renewable Energy sector, Tech. Okay. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप करना और कुछ एस्टेब्लिश करना कोई छोटी बात नहीं है. It's a big achievement which is going to motivate all the students who are planning for that. Sharvam Miani, Home Automation Sector, G6 Super Homes. Sarwan Miani, Home Automation. Please accept the award appreciation. Thank you. Then Garvit Pandya, calling Garvit Pandya, Drone Manufacturing Sector, Innovative Unmanned System. Very congratulations to you. Now calling on stage Kalpit Doshi, Fire Safety Sector, and the Innovation and Startup is JET. Please come on the stage and accept your felicitation. Mayur Parmar of Services Sector, Shield Secure. Vivek Vyas of ICT. If here, please come on the stage and accept the felicitation. Milan Hansalia in Hardtech Sector, Zenhester is the name of startup. Please, a big round of applause for all these startups and innovators. Thank you.
Now calling on the stage, eWealth, Green Energy Sector